Yes, good evening everyone. So we will continue with the structure of glucose. In the structure of glucose, we had seen that a glucose molecule, once again I repeat, a glucose molecule glucose molecule consists of one aldehyde group, four secondary hydroxy group, and primary one primary hydroxy group. So total six carbon atoms, they are linked through a single covalent bond in a straight chain, no branching at all. तो ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला. तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ये स्ट्रक्चर बना ग्लूकोज का. वन अल्डिहाइड, फोर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप. इसी में फिर Haworth has given another structure of glucose, suggesting that there must be some cyclic structure in glucose, because this open chain structure is not able to explain all the properties of glucose. So there must be some ring kind of structure possible in glucose, and Haworth has suggested that glucose is having a pyrene kind of heterocyclic ring structure where oxygen is present in the ring. So it's a six-membered ring where there are six members in the ring, five carbon and one oxygen, and this is what we call as the pyrene ring, heterocyclic ring. Now the point comes कि अगर ये pyrene ring के जैसा है, सिक्स मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, ऑक्सीजन इसके रिंग में है, तो अलोंग विथ कार्बन, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो उसमें क्या किया कि ग्लूकोज में का जो अल्डिहाइड था यहाँ पर, ये अल्डिहाइड को आप देखेंगे अब यहाँ पर, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव. यहाँ पर जो लोएस्ट कार्बन है, नंबर 5, lowest chiral carbon, there are four chiral carbon atoms we had seen earlier. So lowest chiral carbon will create one oxygen bonding. We call it as glycosidic linkage. This oxygen bonding, it develops with the carbon number 1. तो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, तो कार्बन नंबर 1 में ये ऑक्सीजन और यहाँ का हाइड्रो OH, this aldehyde group and of first carbon and secondary alcoholic group, that is fifth carbon, will create a new bonding between C1 and C5. So C1 and C5, they create one oxygen linkage between them, and this oxygen linkage creates one more chiral carbon here. This creates one more chiral carbon, and this is what we call as anomeric carbon atom. So C1 and C5 combine together and create a oxygen link. C1 and C5 combine and create a oxygen linkage, and thus resembles this kind of heterocyclic structure, C1 C5 linkage, and the C carbon number 1 is called as anomeric carbon.
and this anomeric carbon, if having the OH group on the right hand side, we call it as alpha D glucose, and if it is having OH group on left hand side, we call it as beta D glucose. तो यहाँ भी C1C5 create a oxygen linkage, but the position of OH group is what we see here on the left hand side. Here it is on the right hand side, alpha beta. इसी रिंग स्ट्रक्चर को फिर उसके बाद यहाँ पर एक पेपर पे ड्रॉ किया गया। अब पेपर पे जब ये रिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहे थे, अब मैं ये पायरेन रिंग को थोड़ा इरेज करता हूँ, है ना। तो पायरेन रिंग का जो स्ट्रक्चर बना, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर ये प्लेन रहेगी, यानी ये बोर्ड है और अगर ये रिंग स्ट्रक्चर है, सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, है ना। तो परपेंडिकुलर ऐसा ही होगा, है ना। तो अब मैं इसको ऐसा फ्लैट कर देता हूं, तो ये ऐसा ये परपेंडिकुलर रहेगा टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर बोर्ड, एंड योर नोटबुक में रहेगा, तो वो आपके पेपर के परपेंडिकुलर ये रिंग रहेगा, पायरेन रिंग। पायरेन रिंग कैसे हमने बोला इसको, पायरेन रिंग ऑक्सीजन एज ए हेटेरोसाइक्लिक। अब ये रिंग फ्लैट हो गई, फ्लैट हो गई तो इसमें एक लोअर साइड होगा और एक अपर साइड होगा, है ना। हमने जब इसको परपेंडिकुलर ऐसा बना दिया, परपेंडिकुलर अगर रिंग रखा, यहाँ रिंग आ गई, तो इसके लोअर साइड को अल्फा बोलेंगे और इसके अपर साइड को बीटा बोलेंगे। यहाँ ये विद द प्लेन था, ऑन द प्लेन, सेम प्लेन पे, तो OH राइट साइड में गया और OH लेफ्ट साइड में आ गया। लेकिन जब ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, द OH ग्रुप if on the lower side, we call it as alpha isomer, and OH group on the second carbon, and first carbon. ये first carbon, second, third, fourth, fifth carbon and the sixth carbon. फिर से यहाँ नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 and the sixth carbon. ये 6 कार्बन कैसा, ऐसा फ्लैग के जैसा रहेगा, है ना। यहाँ अगर लगा दिए, ये रिंग आ गई, तो ये जो रहेगा ये ऐसा 6 कार्बन बनेगा उसका, जैसा फ्लैग के जैसा रहेगा। ये यहाँ पर ऐसे फ्लैग के जैसा रहेगा अगर उसको आप प्लेन का परपेंडिकुलर बनाते हो। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट टू एक्सप्लेन वंस अगेन, व्हाट इज दैट, C1 and C5 are bonded through oxygen linkage. ये C1, ये C5, इनके बीच में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन लिंकेज, C1, C5 ऑक्सीजन लिंकेज, and OH group on the down side we call it as alpha side, and in the other it is on the upper side we call it as beta side. अब ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर आप देखिए कैसे बना है। OH on the डाउन साइड, करेक्ट है, तो यहाँ भी OH ये डाउन साइड वाला आ गया, एंड दिस फोर्थ विल गो टू द अदर साइड ऑफ इट। ओके, फोर्थ इज गोइंग टू द डाउन साइड, फोर्थ इज ऑन द राइट हैंड साइड, थर्ड विल गो टू द, यानी हमने बराबर ड्रॉ किया था, ऑल्टरनेट आता है ना, तो सही है। चलिए, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कैसे है, हाइड्रोजन से। अब कंप्लीट हो गया। सो C1 C5 ऑक्सीजन लिंकेज, एंड व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि पोजीशन ऑफ सेकेंड कार्बन OH डाउन साइड, थर्ड कार्बन OH ऑन द लेफ्ट, तो ऊपर दिख रहा है आपको, यहाँ देखेंगे लिंकेज में, और फोर्थ वाला फिर से राइट हैंड साइड में है, तो वो डाउन हो गया। रेस्ट ऑफ द वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड। तो ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ये रिंग स्ट्रक्चर बना, इसके हिसाब से यहाँ का रिंग स्ट्रक्चर दिखा। तो अब आप ये C कार्बन नंबर 1 and 5 बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन देखेंगे, सेकेंड कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है, सेकेंड कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में OH, तो अपर साइड गया, सेकेंड, फिर थर्ड,
फर्स्ट वाला अपर साइड में गया, सेकंड वाला हाउ मेनी 1 2 3 4 5 6, ओके ओके ओके, ये एच नहीं बना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। हाँ जी, तो सेकंड वाला डाउन आ गया, थर्ड वाला अप गया, फोर्थ वाला फिर से डाउन आ गया, और फिफ्थ कार्बन पे ये CH2 एज अ फ्लैग यहाँ पर रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब ये जब पायरेन रिंग के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है तो ग्लूकोज का नोमेनक्लेचर क्या होगा? ग्लूकोपाइरानोज, ग्लूकोपाइरानोज, यहां भी ग्लूकोपाइरानोज रिंग। पायरेन है एक रिंग, ऐसा यहाँ पर दिखाया है, ये पायरेन रिंग है ना, पायरेन रिंग हैविंग 2 bonds here, पायरेन रिंग। सो ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, ये स्ट्रक्चर समझेगा तो आगे के डाइसेकेराइड समझेंगे, पॉलीसेकेराइड समझेंगे, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो फिर से एक बार आखिरी बार रिवाइज करने के लिए, ग्लूकोज का ये ओपन चेन स्ट्रक्चर, फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड, लास्ट कार्बन 6 प्राइमरी अल्कोहल, बीच में 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। This open chain structure provided by Fischer, which is not able to explain all the properties because some of the properties are shown by cyclic group. तो cyclic linkage होना चाहिए, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में समझ में आया, यानी इसका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कार्ड कर दिए। लेकिन इसी ओपन चेन स्ट्रक्चर से रिंग स्ट्रक्चर को हमने क्रिएट किया। उसमें क्या किया कि C1 कार्बन और C5 कार्बन, दे आर बॉन्डेड थ्रू ऑक्सीजन लिंकेज, वी कॉल इट एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस लिंकेज विल प्रोवाइड द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप। If the OH group on the downside, we call it as alpha isomer first carbon में, and OH group on the upper side we call it as beta। ओके, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये C1 कार्बन, C2 कार्बन, कुछ तो मिस्टेक हो रही है ये स्ट्रक्चर में बेटा। 1 2 3 4 and 5 3 3 6 है ना, ओके, आ जाएगा। ओपन चेन स्ट्रक्चर में यहां से ही बॉन्ड बना है, ये यहां से बॉन्ड बना है। ये आ गया। अब यहाँ पर ये आ गया ऑक्सीजन के साथ लिंकेज, अब सही हो गया। ये सेकेंड कार्बन डाउन है। यस, यू प्लीज टेक दिस स्ट्रक्चर, आपको ये प्रैक्टिस कर लेनी पड़ेगी। यू हैव टू ड्रॉ दिस। तो फर्स्ट कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, सेकेंड ऑन द राइट हैंड साइड, थर्ड ऑन द लेफ्ट, फोर्थ ऑन द राइट। ये तो बेसिक फंडामेंटल है उसके। ओके डियर, सो हियर वी हैव, अब यहां से भी चाहे तो कार्बन को इरेज कर दो और ये लाइन को एक साथ जोड़ दो आप। तो C1 C2 C3 C4 C5 C6, now it's fairly good। Okay, so this is about the structure of glucose। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन में OH ग्रुप जब लेफ्ट में रहेगा तो वो डाउन जाएगा,
ये OH ग्रुप, क्या मिस्टेक हो गई है? अल्फा में इसने OH लिया है राइट हैंड साइड में। ठीक है, ठीक है, सही है। OH on the right hand side, first carbon, OH on the right hand side, first carbon, second डाउन है वो भी अल्फा साइड में, थर्ड इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, करेक्ट, तो वो अप, थर्ड अप गया, फोर्थ वाला राइट हैंड साइड में है, फिर से डाउन आ गया, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर बॉन्डेड टू ईच अदर। यहां भी मैच कर लेते हैं। OH ग्रुप ऑन द राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, तो ऊपर गया, देन सेकेंड इज डाउन, नीचे आ गया, थर्ड इज अप, फोर्थ इज डाउन, नाउ दिस इज परफेक्ट, दिस इज परफेक्ट। सो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ये वाला स्ट्रक्चर आगे हम यूज करने वाले हैं। वी विल यूज अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज, और अल्फा साइड और बीटा साइड ये आपको दिख रही है यहाँ पर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर to this glucose. Glucose is acting as a reducing agent. It is acting as a reducing agent. We know reducing agent are those which reduces the other substance and get itself oxidized. But in the topic of aldehyde and ketones, aldehyde shows reducing nature and ketone does not. Aldehyde shows reducing nature and ketone does not. Therefore, the presence of one aldehyde group in glucose, presence of one aldehyde group, presence of an aldehyde group on aldehyde group on glucose molecule suggests that it will act as a reducing agent. It reduces Felling's solution. It reduces Felling's solution. It also reduces Tollens reagent. तो ये सब हमने अल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था। अल्डिहाइड shows reducing character, ketone does not. Glucose possess aldehyde group, and therefore glucose is a reducing agent. It reduces Felling solution, it reduces Tollens reagent, and this is what the reducing nature of glucose. Next comes structure of fructose. Now, structure of or representation of fructose. So this is all about glucose. Finally, the structure of glucose is established, and what we use alpha D glucopyranose and beta D glucopyranose. फिर से एक बार ये बेटा अल्फा कब लगाएंगे? जब OH डाउन साइड में रहेगा। बीटा कब लगाएंगे? जब फर्स्ट कार्बन में OH अप साइड में रहेगा, है ना। तो ये स्ट्रक्चर को ही यूज करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं करते हैं। नाउ विल मूव टू फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। फ्रुक्टोज को अगर हम लिखें, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रुक्टोज, तो फ्रुक्टोज को यहां लिखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कम्स, इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी ketone. Polyhydroxy ketone, it is found to be levorotatory. Levorotatory means what? It will rotate the plane on the left hand side, whereas glucose rotates the plane
on the right hand side. तो इसका जो एल फ्रुक्टोज, जिसको अब हम क्या बोल सकते हैं, इसको एल फ्रुक्टोज बोल सकते हैं, लिवो है ये एल फ्रुक्टोज, लिवो रोटेटरी, और इसका बॉन्ड एंगल जो मिलता है -92.4 डिग्री, वी गेट द बॉन्ड एंगल ऑफ रोटेशन. तो ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, it is levorotatory and its bond angle is -92.4 degree is the rotation on the left hand side. तो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रुक्टोज रोटेट करेगा. अब फ्रुक्टोज का अगर एक स्ट्रक्चर बनाए हम, तो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला तो वही है C6H12O6. तो स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, क्या डिफरेंस रहेगा, ये देखेंगे अभी हम. तो फ्रुक्टोज CH2OH, it possess two primary alcoholic group, one ketonic group and four secondary alcoholic group and four secondary alcoholic group. तो वो इस तरह से ये three secondary alcoholic group, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर हुआ, ओपन चेन स्ट्रक्चर. C double bond O ketonic group, 2 primary alcoholic group and 3 secondary alcoholic group. Structure of fructose. Now, this structure of fructose also get converted into a ring structure. अब इसके भी दो रिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे. तो रिंग स्ट्रक्चर में अब कौन से कार्बन यूज होने वाले हैं, ये फिर से हमको देखना पड़ेगा. आपके हिसाब से कौन से कार्बन यूज होना चाहिए फ्रुक्टोज में? विच कार्बन वी आर गोइंग टू यूज? वी आर गोइंग टू यूज विच कार्बन टू फॉर्म अ रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर? अब फ्रुक्टोज के लिए फ्यूरेन करके एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. फ्यूरेन, 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, फ्यूरेन. तो फ्रुक्टोफ्यूरानोज करके बोला जाता है. तो ये फ्यूरेन हो गया 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग. तो इसमें भी ये ऑक्सीजन लिंकेज डेवलप करना है. अब कौन से कार्बन से आप ये ऑक्सीजन लिंकेज डेवलप कर सकते हैं? फर्स्ट और 5 में यहाँ पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फर्स्ट और 5 तो ठीक है, 5th कार्बन, लेकिन first carbon will not provide that linkage. So it is the second carbon which will provide the linkage. Okay, so second carbon will provide the linkage. और लास्ट वाला वैसे ही रहेगा, फर्स्ट वाला साइड हो जाएगा, CH2OH साइड चला गया, और यहाँ पर ये OH लिंकेज मिलेगा, and from here it will combine with C5. तो ये C6, C5, C4, C3, C2. तो ये 2, ये कार्बन नंबर 1, 3, 4, 5 and 6 इस तरह से आ गया. अब इसमें OH की पोजीशन अल्फा बीटा के लिए देखने का है अपने को. तो OH तो एक आ गया राइट हैंड साइड में सेकेंड कार्बन का, लेफ्ट में थर्ड, और फिर से राइट आ जाएगा 4th कार्बन का. तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बना. ध्यान दे रहे हैं आप किस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है ना? यहां से ऐसा ये रिंग स्ट्रक्चर बना. सही है. तो हमने ये CH2 को साइड वाइज कर लिया. अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर बनाना है. तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? फिर से ये CH2OH
अब यहाँ पर first carbon will not going to help in creating oxygen linkage, 6 will not, but second carbon will certainly help to create that linkage. नहीं सही है, ये अल्फा है और ये बीटा रहेगा ना, ये OH यहाँ चला गया, अब ये रिंग के अंदर आ गया, ऐसा उसको याद रखा है ना, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1 कार्बन है ना। अब इसको ऑल्टरनेट कर दीजिए आप, OH OH ऑल्टरनेट नहीं है, यहाँ पर है। ओके, तो ये बना अल्फा डी, अल्फा डी। अब ये हमने कहा था आपसे कि ये फ्रुक्टोज, एल फ्रुक्टोज है, और एल को कौन से साइन से डिनोट करते हैं, माइनस साइन से, है ना। तो ये माइनस साइन, ग्लूकोज में प्लस का साइन लगा रहे थे, फ्रुक्टोज में माइनस का। अल्फा डी दोनों को बोलेंगे। डी क्यों बोलते हैं, ये हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड में पढ़ा था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का लास्ट कार्बन कायरल कार्बन, तो वो डी के रिप्रेजेंट करता है, डी एंड एल। तो ये अल्फा डी, अभी ये इसको फ्रुक्टोज ही लिखेंगे हम, है ना। जब इसका फ्यूरेन के फॉर्म में लिखेंगे तब उसका नोमेनक्लेचर बदलेगा। और ये जो मिला हमको यहाँ पर 6 कार्बन, ये बीटा, ये बीटा एंड दिस इज अल्फा। जो पहले बनाया वो अल्फा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोज। हाँ, बीटा में देखेंगे OH ग्रुप लेफ्ट में गया है और अल्फा में OH ग्रुप राइट में आ गया है। तो राइट में OH ग्रुप है तो ये अल्फा साइन हुआ, है ना। और OH ग्रुप अगर लेफ्ट में गया तो ये बीटा, बीटा साइन हो गया उसका, तो ये बीटा साइन हो गया। अब इसी को फ्यूरेन के रिंग में कन्वर्ट करना है। जैसा हमने ये ग्लूकोपाइरानोज बनाया था, इसी को फ्यूरेन रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्यूरेन रिंग में कैसे कन्वर्ट होगा ये देखते हैं, यहाँ ड्रॉ करें। ओके, अब ये ऑक्सीजन लिंकेज आ गया, तो C1 C5 कहाँ रहेगा ये आप बता सकेंगे, है ना। C1 तो नहीं, C2 एंड C5, तो यहाँ पर C5 होना चाहिए और ये C2 होना चाहिए, और C1 यहाँ रहेगा, CH2OH OH, और यहाँ रहेगा CH2OH। सो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन। बट जो रिंग बनेगी वो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 2 and 5 are bonded through oxygen linkage. 2 and 5 are bonded through oxygen linkage, and here is CH2OH. अब अल्फा और बीटा ये हमको यहाँ दिखाना है, तो ये 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन। चलिए जी, OH ये अल्फा होगा, अल्फा डी माइनस फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोज। हाँ, और ये बनेगा बीटा डी माइनस fructofuranones, fructofuranones. And here what we see opposite of it, OH down है तो इसमें up चला गया,
CH2OH carbon number 1 यहाँ आ गया, and next it will third carbon will have OH and the fourth carbon down OH, fifth carbon is bonded to the sixth carbon again, तो ये 6 कार्बन हो गया। तो अल्फा डी फ्रुक्टोफाइनोज ये अल्फा साइड है ना, अल्फा साइड, और ऊपर वाला जो रहेगा वो बीटा साइड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। फिर से एक बार फ्रुक्टोज की बात करें, इट्स ए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन having one ketonic group, two primary alcoholic group and three secondary alcoholic group. It is found to be levorotatory, so every time we will put minus sign here, okay? तो minus sign यानी उसको हम लिखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर में, कीटोनिक ग्रुप यहाँ पर आ गया, थर्ड कार्बन लेफ्ट हैंड साइड, फोर्थ राइट हैंड साइड, फिफ्थ फिर से राइट हैंड साइड। अब इसमें अल्फा स्ट्रक्चर बनेगा, तो अल्फा स्ट्रक्चर में OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है ना, अल्फा स्ट्रक्चर OH ग्रुप राइट हैंड साइड में, सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन CH2OH, लास्ट कार्बन CH2OH, 1 and 5 will 2 and 5 create oxygen linkage, alpha D minus fructose मिल गया, alpha DL fructose, and this is beta DL fructose where OH group comes on the left hand side with the fifth carbon। अब इसी का हमने क्या बोला कि इसका रिंग स्ट्रक्चर जैसे ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर सारी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वैसा ही फ्रुक्टोज का भी हो गया, and we have drawn this furan. This is what we call as furan ring, and these are the two furan for the fructose, alpha side OH down, beta side OH up, and this is what the two structure of fructose. To know